आरटीसी की हड़ताल पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत रद्दअमल न मिलने पर मुलाजमीन की जेएसी की जानिब से आज खामोश एहतजाज का एहतमाम किया गया। इस खामोश एहतजाज में आरटीसी की खातून मुलाजमीन ने हिस्सा लिया जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे। इन प्ले कार्ड्स में आरटीसी को बचाने का मुतालबा किया गया। इन खवातीन ने कबल अज़ कहा कि मुलाजमत पर रुजू होने के लिए तैयार रहने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आ रहा है, जो अफसोसनाक बात है। हैदराबाद के MGBS बस स्टेशन में भी खातून मुलाजमीन ने खामोश एहतजाज का एहतमाम किया। साथ ही उसी वक्त रियासत के तमाम अजला के डिपोज में भी खामोश एहतजाज जंजीरी भूख हड़ताल की गई। रियासत भर में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए गए और आरटीसी के महलूक मुलाजमीन को खराज पेश किया गया। ప్రొఫెసర్ జయశంకర్కు నివాళులర్పించి ఏదో కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. కార్యక్రమం సంపూర్ణంగా దిగ్విజయమైంది. ఈరోజు మహాత్మాగాంధీ బస్ స్టేషన్ సంబంధించి మహిళా కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని దిగ్విజయం చేసేందుకు మహిళా కార్మికులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. 51 రోజుగా ముక్కవని దీక్షతో ముక్కవని ధైర్యంతో అదేవిధంగా ముందు నుంచి ఉన్న పోరాటం ఏది ఉందో అదేవిధంగా కొనసాగించిన కార్మికులందరికీ జేఎస్ తరఫున వందనాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ సమ్మె యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. రేపు అన్ని డిపోల దగ్గర బస్టాండ్ల దగ్గర ప్రధాన కూడల్లో సేవ్ ఆర్టీసీ పేరుతోన నిరసన కార్యక్రమాలు తెలిపాల్సిందిగా జేఏసీ నిర్ణయం తీసుకున్నది. हैदराबाद के मदाफाती इलाके मौलाली में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इफ्तिताह अमल में आया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। माशी मामलात और शुमारियाती तरीक़ों में आई तब्दीली को नज़र में रखते हुए मुलाजमीन को जदीद तकनीकी महारत फराहम करने के मकसद से इस इंस्टीट्यूट को कायम किया गया है, जहाँ पर सुपरवाइज़र से लेकर IRTS सतह के अहदेदारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तकरीब में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालविया के अलावा रेलवे बोर्ड की फाइनेंशियल कमिश्नर मंजुला रंगराजन व दीगर ने शिरकत की। Officers from this service, they are taking care of the entire financial management, accounting system, and the performance and achievement of the entire Indian Railway depends on this department, and therefore I consider it very appropriate that Indian Railway Account Service has been able to get this institute, which is having a world-class facility. I congratulate that what RVNL has created today. Down the line, it will be even much better than what it is today, and we will see that this campus is totally maintained in such a way that all the time it looks fresh and new. During the inspection, you might have seen that lot of green patches have been planted. All those greenery, they are yet to come. But once it comes, I can imagine within next 2-3 months, this institute is going to look even much better. सुप्रीम कोर्ट के जज सुभाष रेड्डी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुल्क की माशी तरक्की मुमकिन है। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुल्क में तरक्की हो रही है। सुभाष रेड्डी ने कहा कि एक ज़माने तक पॉलिटेक्निक में सिविल, मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक शोबे ही थे। दौर हाजिर के तकाज़ों को देखते हुए इसमें तब्दीली लाई गई है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इस मौके पर शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा में अवार्ड्स तकसीम किए गए। Diamond Jubilee celebrations. Why we do this? Why Silver Jubilee? Why Golden Jubilee? Why Diamond Jubilee? Why Platinum Jubilee? Is that only for mere celebrations, or what is the purpose and object of the celebrations? These are the celebrations apart from recreation activities. These are the days we have to introspect ourselves and to lay roadmap for the growth of the institution. These are the objects of this kind of celebrations. Last time I went in 1972 to Hyderabad
who are struggling for English language. We were very difficult days for those English medium students compared with the English medium students. I had a passion to develop English, joined Institute of English, joined Russell Spoken English, and to some extent I have developed, but at the same time I can't speak. ఎందుకంటే కలెక్టర్ గారు ధారాళంగా తెలుగులో మారించినారు. I can't take any chance. I want to share my views only in English. एनसीसी कैंप में दी गई ट्रेनिंग जिंदगी के हर मोड़ पर मुफीद साबित होगी, यह कहना है दंडीगल एयरफोर्स एकेडमी के कमांडेंट एयर मार्शल चलपति का। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना आंध्र प्रदेश एनसीसी डायरेक्टरेट की क़यादत में 71वां एनसीसी डे मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एयर मार्शल चलपति ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि एनसीसी में दी गई ट्रेनिंग नौजवानों में लीडरशिप की खुसूसियात को उजागर करती है। इस मौके पर निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, वरंगल, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुंटूर, काकीनाडा, करनूल, भोंगीर के एनसीसी तलबा ने सलामी पेश की। इस मौके पर एनसीसी तलबा की जानिब से दम बखुद करने वाले करतब किए गए। लड़कियों की जानिब से मुनक़्क़दा कल्चरल प्रोग्राम्स भी सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे। Felicitations and compliments to the entire NCC fraternity for the 71st NCC days. This is not a single date every year. It always happens on the fourth Sunday. It allows us to greater participation because by nature NCC is a voluntary corps. When we think of NCC, some traits instantly come to our mind. And these days, these traits are the fundamental ethos of all the three armed forces. NCC provides a flavor of what life is in the armed forces without any of you having commitment to join them as well. The facets of NCC what come to mind are leadership, camaraderie, character building, patriotism, discipline, and a touch of the military way of life. But what I witnessed today, I must say, is something beyond that. If I look at superlatives, I don't think I'll be able to finish off because each one of the aspects that was seen today by me brought a lot of pride in. हैदराबाद 10K रन की क़यादत में नेकलेस रोड पर 10K और 5K रन का अहतमाम किया गया। रियासती वजीर के अलावा आईटी सेक्रेटरी और टॉलीवुड के अदाकारों ने रन को झंडी दिखाई। शहर हैदराबाद के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 12,000 से ज़्यादा अफराद ने रन में हिस्सा लिया। रियासती वजीर ने कहा कि आए दिन आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में रोज़ाना 15 मिनट की वॉकिंग बेहद ज़रूरी है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। उन्होंने हैदराबाद 10K रन की जानिब से दौड़ मुनक़्क़िद करने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। ఒక్కరికి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఎన్నో రకాల జబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి, పొల్యూషన్ వస్తూ ఉంది, ప్రజల్లో మంచి అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది చదువుకున్నటువంటి యువకులు, మంచి మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సు, మేధావులు ప్రతిరోజు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వాకింగ్ చేయాలి, రన్నింగ్ చేయాలి. స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అంటే ఒక క్రికెట్ ఆడుతానో, వాలీబాల్ ఆడుతానో, ఫుట్బాల్ ఆడుతానో కాదు. స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ మీన్స్ ఎవరు ఉదయం లేచి రన్ చేస్తారో, వాక్ చేస్తారో వాళ్ళే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి యువకులు కానీ ప్రజలు కానీ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఎన్నో పనులు మంచి చేయగలుగుతారు. అనారోగ్య వ్యక్తికి అనారోగ్య ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఆరోగ్యమైన వ్యక్తికి మంచి ఆలోచనలు, లక్షణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇంకా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కావాలంటే ఆరోగ్యవంతులు ఉండాలి. వీళ్ళు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. 17 సంవత్సరాలుగా 10K నిర్వహిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం యువకులలో ఏజ్కు నిమిత్తం లేకుండా, వయస్సుకు ఆడ మగ నిమిత్తం లేకుండా అందరు వాక్ చేయాలి. మేము ఉత్సాహంగా తర్వాత ఒక మంచి కాజ్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ రన్ మనకు హైదరాబాద్కి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుతూ ఉంది. ఈ సంవత్సరం కూడా ఇది బాగా జరుగుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇది 17th ఎడిషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రీడమ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ హైదరాబాద్ 10K. ఇప్పుడు దేశంలో దాదాపు వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లియస్ట్ రన్స్. ప్రతి ఊర్లో వి ట్రై టు ఆర్గనైజ్ లార్జ్ మ్యారథాన్స్ ఆర్ సిగ్నేచర్ రన్స్. అది మన హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ 10K, మళ్ళీ హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ రెండు ఉన్నాయి. సో మన హైదరాబాద్ వేరే ఊర్లో కంటే చాలా ముందు నుంచే మొదలు పెట్టారు. సో దట్ ఈస్ ప్రౌడ్ ఫీచర్ ఫర్ హైదరాబాద్. అది ఈ సంవత్సరం 16,000 మంది రిజిస్టర్ అయ్యారు 10Kకిను 5Kకి. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్. 10K రేస్. వేరే దేశాల నుంచి అథ్లీట్స్ వచ్చారు, మన వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు, మన ఇండియన్
లీడ్ ఒలింపిక్ వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్. అండ్ వాళ్ళందరితో పాటు యావరేజ్ సిటిజన్స్, అమెచ్యూర్ రన్నర్స్ వాళ్ళు కూడా పాల్గొగలుగుతారు. సో నేను ఎప్పుడు అంటాను, దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ క్రికెట్ మ్యాచ్. సచిన్ టెండూల్కర్తో సాటి పిచ్లో ఆడినట్టు ఉంటుంది. अदाकारी, तिजारत और सेहत के मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली अदाकारा राकुलप्रीत सिंह अब खेल के मैदान में भी अपना जलवा बिखेरने वाली हैं। राकुलप्रीत सिंह ने टेनिस स्पोर्ट्स टीम फाइन कैब को खरीद लिया है, जिसमें वायर एंड केबल्स भी शिराकतदार है। आइंदा माह 12 से 15 तारीख तक मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में टेनिस प्रीमियर लीग मुकाबला मुनक्किद होने वाला है। राकुलप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी टीम शानदार मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल करेगी। राकुलप्रीत सिंह का कहना ताल्लुक आर्मी खानदान से है और खेलों से उन्हें काफ़ी दिलचस्पी है। This is my team in the Tennis Premier League, TPLO, and TPL is an opportunity for it's like the IPL in cricket. TPL is the Tennis Premier League, which is starting in December, and I'm super happy to be a co-owner of Hyderabad, playing international level tennis, for making tennis more popular amongst Indians. Under 14 undi, under 18 undi, wheelchair participants unnai, and all national lo kuda in the top 20 best players unnai team lo. So let's hope that Hyderabad team wins and aaja मैदान में. निजामाबाद के मदाफाती इलाके में वाक़ गिरिजन गुरुकुल डिग्री कॉलेज में मिलावटी ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद दर्जनों लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। कॉलेज इंतज़ामिया ने मुतासरा 63 तालिबात को ज़िले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ज़िला कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा करते हुए मुतासरा लड़कियों से बातचीत की और बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। ज़िला कलेक्टर ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। मुतासरा लड़कियों का कहना है कि रात का खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह में उन्हें पेट में दर्द के अलावा सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। चंद लड़कियों को दस्तुक़े की शिकायत के बाद तमाम मुतासरा लड़कियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव के गाड़ियों के काफिले में शामिल गाड़ी उलट गई। यह हादसा जंगांव जिले के लिंगा गंगापुर मंडल के चित्तूर गांव के नवाही इलाके में बीती शब तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। इस हादसे में कार का ड्राइवर और वज़ीर का सोशल मीडिया इंचार्ज मौके पर ही हलाक हो गए। वज़ीर के पीए शिवा, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर्स नरेश और अटेंडर टाटा राव जख्मी हो गए। शिवा और नरेश को जंगांव के एरिया अस्पताल में दाखिल करवाया गया। टाटा राव को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दयाकर राव हैदराबाद से बालाकुर्ती जा रहे थे। वज़ीर पहली कार में सवार थे, महलुकीन दूसरी कार में थे। वज़ीर दयाकर राव ने महलुकीन के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। हैदराबाद के हुसैन सागर सड़क पर बीती शब सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक साई तेजा और उसका दोस्त भानु प्रकाश मोटरसाइकिल पर हुसैन सागर आए थे। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद ये दोनों रानीगंज रोड की जानिब अपनी बाइक को मोड़ दी। दूसरी समत से आने वाली बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में साई तेजा और प्रकाश सड़क पर गिर गए, जबकि दीगर 2 अफराद शिव कुमार और उसका दोस्त भी जख्मी हो गए। यह हादसा CCTV कैमरों में कैद हो गया और तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गांधी नगर पुलिस ने मामला दर्ज करके जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने करनूल का दौरा किया। इस मौके पर जगन हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात के पर हमारे करनूल नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी से बातचीत की। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए
पिछले 6 महीनों में वाईएस गवर्नमेंट ने क्या क्या इक़दाम किए हैं और किस तरीके से वो कामयाब रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। अमजद सर, सिर्फ अक़लियतों के नहीं, सबके लिए आज हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई जगन मोहन रेड्डी साहब, हमारा पहला प्रायोरिटी एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ है, जिसमें सारे कौम उसमें आ जाते हैं। अगर कोई कौम आगे बढ़ना है तो एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इल्म करने का पहले अव्वल दर्जा दिया जाता है हमारी हुकूमत में। इसलिए हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले गवर्नमेंट स्कूल्स जो रिवैम्प करने का जो बेड़ा उठाया है, ये इसके पहले गुज़िश्ता हुकूमतों में कभी भी नहीं हुआ। आज नाडू नेडू जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके तहत पूरे जितने भी आंध्र प्रदेश में जो 45,000 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसको 3 साल में हम इसको रिवैम्प कर, पहले साल में हमने 1/3 स्कूल्स को लिया है, जिसमें हम पूरे जितने भी बेसिक फैसिलिटीज स्कूल्स में हम मुहैया करा रहे हैं, जैसा कि फर्नीचर बच्चों के लिए, क्लासरूम्स और क्लासरूम में फैंस, ट्यूबलाइट्स और उनके बाद टॉयलेट्स को रनिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हम, और उनको प्लेग्राउंड और स्कूल को कॉम्पाउंड वॉल जैसे बेसिक कम्युनिटीज हम उसको मुहैया करा रहे हैं। आज़मीन हज के लिए क्या क्या करें? हाल में एक जीवो निकाला है, जिसके तहत जिसकी आमदनी 3 लाख के ऊपर है, उनको 60,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, और जिसकी आमदनी 3 लाख से ज्यादा है, उनको 30,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो 2020 का जो आज़मीन हज का जो रवानगी, हम इंशाअल्लाह गन्नावरम एयरपोर्ट जो हमारा स्टेट का जो एम्बार्केशन पॉइंट है, वहां से हम हाजियों को वहां से भेजेंगे, और विजयवाड़ा में उनको अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन रहने का और खाने का इंतजाम भी करेंगे। वहां तरबती क्लासेस भी हमारे हाजियों को आज़मीन हज को वहां पे मुनक़िद करेंगे, और उनको बहुत अच्छी तरीके से हम उनको रिसीव करके उनको वहां पे पूरी तरीके से सहूलियात प्रोवाइड करके उनको हज के लिए रवाना करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल, ये मुअज्जिन और इमामों की तनख्वाह बढ़ाई और उसके गुज़िश्ता जो हुकूमतों में जो हमारे जितने भी मस्जिदों में जो इमाम और पेश इमाम्स रहते हैं, इमाम और पेश इमामों को 3,000 और 5,000 रुपये जो तनख्वाह दी जाती थी, उसको हमने हमारे इलेक्शंस के पहले हमारे मैनिफेस्टो में भी हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको 15,000 रुपये किया है। 10,000 और 5,000, पेश इमाम के लिए 10,000 और मुअज्जिन के लिए 5,000 रुपये, जो हम मार्च के 1 तारीख से उसको हमारे आंध्र प्रदेश में हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जो हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो नवंबर 11 तारीख का जो प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि उसको मार्च से उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके बाद हम जो वैया जगनन्ना अम्मावड़ी जो प्रोग्राम है, वो मदरसों को भी हम उसको फायदा पहुंचाना बोल के उसको भी हम जो 11 नवंबर को डिक्लेयर किया कि हम एक मदरसा बोर्ड बनाएंगे, जिसके तहत जो भी मदरसे उसमें अफिलिएशन में आते हैं, जितने भी बच्चे वो अफिलिएटेड मदरसा में जो तालीम हासिल करते हैं, उन सबको उनको अम्मावड़ी जो स्कीम है, वो स्कीम भी उनको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। विजयवाड़ा में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश यूनिट का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासत के अजला और सिटी सुदूर की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में एमआईएम को रियासत में मुस्तहकम करने और आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आपस में मुत्तहिद होकर फ़रक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने जोर दिया गया और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करने की अपील की गई। करनूल के गुंबद दरगाह मैदान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद अबू बकर ने शिरकत की। मौलाना ने मुसलमानों को नमाज कायम करते हुए अल्लाह की मदद हासिल करने की तलकीन की। जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद शाह कमर पीर कादरी ने की। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अबू की मंजिल तय कर रहे थे। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रोज जिस्म के दरमियान थे। उस वक्त भी कुंतो तलवार के जोर पर नहीं, मोहब्बत के जोर पर।
करनूल के वेलुगेड मंडल का आंध्र प्रदेश नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने दौरा किया और वहाँ की उर्दू मीडियम तलबा को फौजिया करीम फाउंडेशन की जानिब से माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए मुस्लिम अक़लियतों को सब प्लान भी तैयार करने का मनसूबा है। उन्होंने तलबा से बातचीत करते हुए अम्मा बड़ी स्कीम से फ़ायदा हासिल करने की अपील की। సామాజిక వర్గానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయాలి. కుల మతాలకు అతీతంగా మా కులాలు మతాలు మరి ముఖ్యంగా పార్టీలు కూడా చూడమని కూడా ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మతాలు చూడం, కులాలు చూడం, పార్టీలు కూడా చూడమని చెప్పి आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम का इस्तकबाल करते हुए अम्बेडकर इंडिया मिशन की क़यादत में रैली निकाली गई। गुंटूर के लॉज सेंटर तालुका सेंटर तक रैली निकाली गई, जिसमें अम्बेडकर हामियों के अलावा अवामी तंजीमों के नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। AIM कन्वीनर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अंग्रेजी वज़री तालीम को सरकारी स्कूलों में शुरू किया है, जिससे गरीब बच्चों को तरक्की के मौके फराहम हुए हैं। उन्होंने अंग्रेजी तालीम की मुखालफत करने वालों पर कड़ी तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस का ओहदा हासिल करने के बाद CJI ने आज तिरुमला तिरुपति का दौरा किया। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि भगवान बालाजी के दर्शन करना अपने आप में मुकम्मल नया तजुर्बा है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि वो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गुज़श्ता 40 बरसों से आ रहे हैं, लेकिन इस बार दर्शन करना इनके लिए एक नया तजुर्बा है। उन्होंने अपने बेटे श्रीनिवास बोबडे के साथ मंदिर गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। मुल्क में प्याज की कीमत आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई है। आंध्र प्रदेश में प्याज की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से 85 रैतू बाजारों के जरिए आवाम को 25 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। आवाम ने सिर्फ 1 किलो प्याज फी फर्द सप्लाई को नाकाफी करार दिया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आंध्र प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमत से हर कोई परेशान है। आम आदमी प्याज की बढ़ती कीमतों से खौफजदा है। आज का प्याज दाम इतना बढ़ गया, केजी 100 रुपए बिक रहा है। आम आदमी कैसा जीते, क्या करते, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम हुआ हमको आने का आमदनी कितना है। एक प्याज में केजी प्याज 100 रुपए के, तो हम क्या करते बोलो। गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम हुआ। सारे होलसेल लोग ब्लैक कर डाल के ये कर डाले गोडाउनों में। कैसा है, गोडाउन में से बाहर निकाले तो जरा रेट कम पड़ेगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से प्याज की कीमतों पर कंट्रोल करने और हर फर्द को प्याज फराहम करने के लिए रैतू बाजार के जरिए 25 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त की जा रही है। Price hiked in the market. We have taken a decision on behalf of the state government to provide onions at the rate of 25 kgs in Raitu Bazaars. We have received onions yesterday 80 tons and we have distributed it to the entire Krishna district Raitu Bazaars. जिला कृष्णा की डिप्टी कलेक्टर माधवी ने कहा कि काला बाजारी और जखीरा अंदोजी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। Now what we are doing is no onion trader or no other business person should hold the onions more than 50 tons per person. He should have compulsory license with him. Recently we have 50 tons of onions. So we have seized that onion also and we have issued a lot of penalty on him. So all the measures are being taken that the illegal storage of onions is not there in the market and the onions are given to the beneficiaries or to the families at the rate of 25 kgs in Raitu Bazaar. फिलहाल हुकूमत एक महीने के लिए 25 रुपए फी किलो प्याज रियायती कीमत पर फरोख्त कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में प्याज की कीमत से लोगों के आंसू रुक पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।